Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to continue our discussion on functions of one variable. So जो भी linear functions and graphs and basics of function, domain, range, ये सब जो discussion कर रहे थे. Today, this is the last part of that particular chapter. So today we will talk about linear equations को किस तरीके से solve करना है both graphically and using algebra. And we will also look at how to plot inequalities को किस तरीके से plot करना है. And this will continue, begin our discussion on plotting budget set, which is a very important concept in economics. So I hope you are all ready for today's discussion. And just I want to mention that if you are new to this channel, this is a series on mathematical methods of economics, which is a semester 1 course for BA Economics Honor students that we are continuing on this channel. So if you are someone who is in that course, or if this is something that might interest you, please consider subscribing to this channel, because we will continue posting videos related to economics, statistics, and mathematics. And for those of you who've been with this channel, thank you so much for your continuous support. And I'm pleased to make such kind of videos for you. So thank you so much. And let's get into today's video. So let me begin. All right, so first things first, in today's lecture, we will talk about how to solve linear equations. And so using an example, and we will also look at how to plot linear inequalities, जिसमें हम लोग budget set को plot करना भी सीखेंगे. So these two are going to be the agenda for today. So let's begin with the first one. So let us try and see how we will, how we can solve a linear equation, a set of linear equations. Okay, so suppose I have an example जहां पे मुझे दो equations दिए हुए हैं. First one is x plus y equals to 5 and the second one is x minus y equals to -1. I have to solve these two equations. I solve these two equations का मतलब है मुझे वो x और y के points निकालने हैं जो दोनों equation को satisfy करते हैं, right? So algebra का यूज करके I am sure you must know how to do that, but just for the sake of completion, let us do that. So algebra का अगर हमें यूज करना है, algebra का यूज करना का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करके जो भी ऑपरेशंस करना चाहते हो, उस तरीके से आप किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे. सो x plus y equals to 5. This is my first equation, and my second equation is x minus y equals to -1. So usually हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरीके से इक्वेशंस को आपस में या तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड या कुछ भी करते हैं ताकि कोई ना कोई एक वेरिएबल जो है वो दोनों में एग्जैक्टली सेम हो जाए, राइट? सो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी x और x सेम है, और अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से ये वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, व्हाट विल वी गेट? अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे. So this becomes minus, this becomes plus, and this is already minus, so this becomes plus. ठीक है? And then I will just perform these operations. So x minus x is 0, y plus y is 2y is equals to 5 plus 1 is 6. So y becomes 3. And if y is 3, अब y की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो अब आपको x की वैल्यू निकालनी है. So I know that x plus y equals to 5, x plus 3 equals to 5, so x is equals to 2. ठीक है? So ये तो हो गया हमारा algebra का यूज to solve these two equations. So अब suppose अगर इस तरीके की इक्वेशन मेरे पास होती कि this would have been 2x plus 2y, तो मैं क्या करती, मैं ये कर सकती थी कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करती. सो यहाँ पे मेरे पास 2x minus 2y minus 2 हो जाता, राइट? एंड देन आई वुड हैव डन द सेम थिंग, ताकि मेरे पास 2x minus 2x कैंसिल हो जाता है, मेरी पूरी की पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाती और फिर मैं y की वैल्यू निकाल देती. इस तरीके से हम अलजेब्रा का यूज करके इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है? अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ग्राफिकली चीजों को देखें, बट ग्राफिकली जरूरी नहीं है हमारे पास प्रॉपरली हमेशा आंसर आए, क्योंकि अगर हम लोग ग्राफ, अनलेस वी आर ड्रॉइंग इट ऑन अ कंप्यूटर, वी डोंट नो एग्जैक्टली वेयर दीज टू पॉइंट्स आर इंटरसेक्टिंग.
और काफी बार पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है। तो अनलेस आप प्रॉपर स्केल्ड ग्राफ में चीजें बना रहे हो, आपका आंसर जरूरी नहीं है कि आपको क्लियर हो, बट वी शुड नो हाउ दीज टू थिंग्स लुक लाइक, ठीक है। So let us see, in the previous lecture also we saw कि this is a equation of a straight line. तो how does that straight line looks like? Is it upward sloping or is it downward sloping? So ये सारे concepts हमारे यहाँ पे cover होंगे, ठीक है। So सबसे पहले if we look and try and see how to plot the graphs, so हम क्या देखते हैं? Okay, so what is my first equation? My first equation is x plus y equals to 5, right? And my second equation is x minus y equals to -1, right? So मैं इनको थोड़ा सा modify करूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? y equals to minus x plus 5. This is my first equation, right? And what is my second equation? My second equation becomes, अगर मैं y को यहाँ पे लेके आऊं और -1 को इधर, then I get what? x plus 1 equals to y. So y equals to x plus 1. मेरे पास ये दो इक्वेशंस हैं, and these two both these are इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और अब मुझे स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है। सो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है तो आप क्या करोगे? सो लेट्स से दिस इज, हम लोग नंबर्स यहाँ पे डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, and this is 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 and -4. Okay, so सबसे पहले we will begin plotting this particular line. So कोई भी लाइन जब आपको प्लॉट करनी है तो सबसे पहले तो आपको, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन की स्लोप क्या है और इस लाइन की इंटरसेप्ट क्या है, तो आप क्या बताओगे? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था that y equals to ax plus b, जहाँ पे a जो होता है that is the slope, a is the slope, right? And b is the y intercept, ठीक है। सो इस, ये जो लाइन है इसके लिए स्लोप इज -1 and y intercept is 5, right? And for this line slope is 1 and y intercept is also 1, right? So ये हमारे numbers हो गए, okay? All right, so now what do I want to do? I just want to plot these lines. तो सबसे पहले तो आप ये देखो, y इंटरसेप्ट मुझे क्या बताएगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो मेरा जो y है वो क्या वैल्यू ले रहा है। सो इसके लिए जब मेरे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 5। तो ये एक पॉइंट हो गया मेरी इस लाइन पे। अब मेरा दूसरा पॉइंट अगर मैं पूछूं, दूसरा पॉइंट मेरा x इंटरसेप्ट भी हो सकता है। x इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सो जब y की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5, राइट? सो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 5। तो मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए इस लाइन के लिए। सो मैंने अगर सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो मेरी लाइन आ गई। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ। सो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके मेरी ये लाइन आ गई, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, हमने प्लॉट कर दिया, ओके। अब और हम देख रहे हैं कि इस लाइन की स्लोप क्या थी? -1। हमने देखा था लास्ट टाइम, स्लोप अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है? आपका जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो जैसे जैसे आपकी x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपकी y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। सो ये सब हमने देख भी लिया। सो दिस इज माय फर्स्ट लाइन। व्हाट इज माय सेकंड लाइन? माय सेकंड लाइन का जो y इंटरसेप्ट है, मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी? 1। सो दैट y की वैल्यू इज 1 हियर, ठीक है, ओके। अब मुझे पता करना है कि इसका x इंटरसेप्ट क्या है। x इंटरसेप्ट क्या होता है? जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? सो जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? -1, राइट? सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? -1। सो अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर दिया तो मेरे पास मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो मेरे पास क्या आ गया? इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे पास एक ये लाइन आ गई। अब आई विल सिंपली डू व्हाट? आई विल एक्सपैंड दिस लाइन, ठीक है। और ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या फिर सोल्यूशन ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है।
अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जैक्टली क्या होगा, इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम आप यूज करो, कोई कोडिंग इस तरीके से आप चीजें यूज करो। अब यहाँ पे डायरेक्टली तो है, हम इक्वेशन देख के बता सकते हैं। जैसे हमारा सोल्यूशन क्या आया था, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू क्लोज टू 2 एंड y की वैल्यू जो है 3। सो अगर हम ग्राफ बहुत एग्जैक्टली अच्छे तरीके से मेजर करके बनाते तो हमारा आंसर भी यही आता, ठीक है। एंड सो हमारी जो दूसरी इक्वेशन थी, इसका स्लोप था 1 विच इज पॉजिटिव। तो हम देख रहे हैं कि हमारी लाइन जो है पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग है। सो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो इस तरीके से आप या तो ग्राफ का यूज करके या तो फिर आप एलजेब्रा का यूज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो हमने हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कर लिए और हमने इनको सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लिया, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू अनदर टॉपिक फॉर टुडे विच इज लीनियर इनइक्वालिटीज जो हैं उनको हम लोग किस तरीके से प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो हमने लीनियर इक्वेशंस देख लिए। अब लीनियर इक्वेशंस का एक और, अगर आप थोड़ा सा एडवांस वर्जन देखो, दोज आर लीनियर इनइक्वालिटीज, कि इक्वालिटी वाली लाइन तो है ही है, उसके अलावा भी एक रीजन है जो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सो उसमें वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बाय लुकिंग एट अ फ्यू questions. So the first question is, draw the set of points that satisfy this particular linear inequality. So किसी ने हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी है, 2x plus y is less than equal to 4, ठीक है। और आपको वो सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स क्या क्या होंगे, वो सारे x एंड y के पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो अगर लेट से मैं ओरिजिन देखूं 0 0, सो 0 0 क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो जब आप इधर 0 0 पुट करोगे तो आपका जो इक्वेशन है वो 0 ले लेगा वैल्यू, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। सो यस, इट इज सेटिस्फाइंग दैट, राइट। सो ओरिजिन जो है, जो भी एरिया हमें बनाना है उसका हिस्सा होगा। ऐसे ही हमें वो सारे पॉइंट्स बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, so we want a set of points x y such that they are satisfying this condition, ठीक है। so जब हम set notation के बारे में पढ़ रहे थे, so if you have not watched that video and if you have some trouble in understanding that, you can look at that video. I will put the link of that video in the description, and you can also click on the I button ऊपर and watch that video, ठीक है। so this is the नोटेशन, हाउ यू राइट कि ये सेट क्या होगा। तो मुझे ये पूरा का पूरा जो सेट है ये कैसे प्लॉट करूं मैं, वो करना है, ठीक है। चलो, तो इसको हम लोग लेट अस बिगिन प्लॉटिंग दिस पर्टिकुलर कर्व। सो हाउ विल वी डू दैट, चलो ओके। सो मेरी इक्वेशन जो है दैट इज व्हाट, 2x plus 4 is less than equal to, okay, so this is not, yeah, this is 2x plus y. 2x plus y is less than equal to 4. okay, ये मुझे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको प्लॉट करना है लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज को, सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी में से वो जो लीनियर इक्वेशन आपको दिख रही है वो आप सेपरेट कर लो और उसको प्लॉट करो, ठीक है। सो 2x plus y equals to 4, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। अब मुझे, मेरा गोल क्या है, मैं पहले इस लाइन को प्लॉट करूं, ठीक है। ओके, सो ये लाइन अगर मुझे प्लॉट करनी है तो मैं क्या करूंगी, दिस इज माई ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब आप मुझे बताओ कि इसका ये जो इक्वेशन है इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा। सो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जब वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है। सो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, y इंटरसेप्ट इज व्हाट, जब x की वैल्यू 0 होती है तो y की वैल्यू क्या होगी। सो जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी तो y की वैल्यू क्या हो गई, 4, राइट। सो 1 2 3 4, तो ये दो पॉइंट्स जो है मेरे पास आ गए इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, और मैंने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके मेरी लीनियर इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन है उसको मैंने प्लॉट कर दिया, ठीक है। सो
I plotted this line. ठीक है, ये मेरी लाइन मैंने प्लॉट कर दी। अब जब हमें ये देखना है, अब ये जो लाइन है इसने ये जो पूरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन कार्टेशियन प्लेन, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक हिस्सा तो ये वाला हिस्सा जो भी नीचे वाला हिस्सा है, और एक हिस्सा है ये ऊपर वाला हिस्सा, राइट। इस पूरे प्लेन को इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे ये जानना है कि मेरा वाला हिस्सा कौन सा है, व्हाट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सो अब I need to see what all points satisfy this particular equation. So 2x plus y equals to 4, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सारे पॉइंट्स तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं इस लीनियर इनइक्वालिटी को। अब मुझे क्या देखना है, जब भी आपको चेक करना है तो आप क्या करो कि ये रीजन आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है या फिर ये रीजन, इसके लिए आप क्या करो, आप मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अनलेस आपकी लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है, अनलेस आपकी लाइन ऐसी होती है कि इस तरीके की, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यूजुअली पता करने के लिए क्या करते हैं कि आप पूरे पॉइंट ले लो ओरिजिन। सो आपने क्या लिया, पॉइंट 0,0। अब आप चेक करो ये 0,0 जो है आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, जैसे कि हमारे केस में इट इज सेटिस्फाइंग दिस 0,0 इज लेस देन इक्वल टू 4। सो ये जो स्टेटमेंट आई है ये ट्रू है, राइट, 0 इज लेस देन 4, वी ऑल नो दैट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज टूवर्ड्स द ओरिजिन। सो ओरिजिन की तरफ जो भी एरिया होगा वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर ऐसा हो जाता दैट 0 इज अगर ये इक्वेशन ये जो इनइक्वालिटी है ये जो हमने 0,0 यूज करके निकाली, अगर ये ट्रू नहीं होती तो ओरिजिन से दूसरा वाला जो हिस्सा होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन, सो इफ दिस इज ट्रू यू मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, if this is not true you move away from the origin. So in this particular case what is my area of interest, my area of interest is this particular area towards the origin, origin की तरफ वाला जो एरिया है that is my area of interest, ठीक है। and अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2x plus y is less than equal to, so ये वाली लाइन भी इंक्लूडेड है, so ये वाली जो लाइन है this is also included। अब अगर ऐसा होता कि ये लोग लिख देते कि 2x plus y is less than 4, मुझे ये प्लॉट करना है, तो उस केस में क्या होता, आपका ये सारा एरिया इंक्लूडेड होता एक्सेप्ट फॉर दिस लाइन, ये लाइन आपकी इंक्लूडेड नहीं होती। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको डॉटेड वे में प्रेजेंट करते हैं। डॉटेड वे में प्रेजेंट करने का मतलब है ये वाली जो लाइन है दिस इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। सो ये कुछ कुछ सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे हमें चीजों को इस तरीके से प्लॉट करना हो सकता है, ठीक है। बट जो भी हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से दिस पर्टिकुलर एरिया is my area of interest, so we have a set of points that satisfy this particular equation, okay। so इस तरीके से जो है हमें लीनियर इनइक्वालिटीज को प्लॉट करना है, ठीक है। सो अब क्या है, दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, सेकंड एग्जांपल इज अ लिटिल बिट ऑफ एन एग्जांपल फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब उसमें देखते हैं, तो सपोज मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। अब वो सिचुएशन क्या है कि देयर आर टू प्रोडक्ट्स, कि दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। जो दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में मिलते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ भी हो सकते हैं, लेट्स से एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ओके, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस, एंड आप एक इंसान हो, ठीक है, जो कि आप हो, और आपकी जो इनकम है वो m यूनिट्स है, m इज योर इनकम। सो लेट्स से अगर m की वैल्यू 100 हुई मतलब आपकी इनकम है 100 रुपीज, तो आपकी इनकम है m, ठीक है, ओके। और जो एप्पल्स हैं वो किस रेट पे मिल रहे हैं मार्केट में, p रुपीज पर पीस ऑफ एप्पल, रुपीज p। और ऑरेंजेस जो है वो किस रेट पे मिल रहे हैं, रुपीज q, ठीक है। और अब आपने क्या किया, आपने x यूनिट्स ऑफ एप्पल खरीद लिया एंड y यूनिट्स ऑफ ऑरेंज खरीद लिया। सो दिस इज x यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड y यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है। सो आपने एप्पल खरीदे p रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, ऑरेंजेस खरीदे q रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, और आपकी इनकम जो है वो m यूनिट्स है।
तो अब हमें किसी ने पूछा कि भाई मुझे बताओ कि व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दैट यू कैन बाय गिवन वॉट एवर इनकम यू हैव, कि अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में आप क्या क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस खरीद सकते हो। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एप्पल एंड ऑरेंजेस हम सिर्फ एग्जैक्ट पीसेस में नहीं ले रहे हैं, आधा एप्पल, 1/3 एप्पल, 1/4 एप्पल, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम इस तरीके के केस में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपने x यूनिट्स ऑफ एप्पल खरीदे, अगर मान लो आप एक 5 रुपए की पेंसिल खरीदते हो और 5 पेंसिल खरीदते हो, तो कितने पैसे हो गए? 25 रुपीज। तो आपने क्या किया? 5 × 5। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर एप्पल का प्राइस है p और x यूनिट ऑफ एप्पल खरीदे, तो आपका खर्चा कितना हुआ है? p टाइम्स x, p × x। सिमिलरली अगर ऑरेंजेस q रुपीज के हैं और 1 यूनिट ऑरेंज क्यू रुपीज में मिल रहा है और आपने y यूनिट खरीदा, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है? QY। और अब हमें पता है कि मेरी इनकम तो m रुपीज है, तो मेरी जो खर्चे हैं वो मेरी इनकम से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मेरा टोटल ये जो px प्लस QY जो टोटल खर्चा किया है मैंने, दैट शुड बी लेस देन माई इनकम, राइट? सो दिस px प्लस QY शुड बी लेस देन और इक्वल टू माई इनकम। मैं मैक्सिमम मेरी इनकम जितना खर्चा कर सकती हूँ इस पे, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। मैं उधार लेना, कर्जा लेना, ये सब अलाउ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो जितनी मेरी इनकम है उसके हिसाब से मैं इतने प्रोडक्ट्स जो है खरीद सकती हूँ। ठीक है, सो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बजट सेट। ठीक है, बजट सेट। So this is nothing but all the set of x's and y's such that you can afford that, कि ये सब x और y के जो भी पेयर्स आएंगे बजट सेट में वो आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, सो इसको बोलते हैं बजट सेट। और क्या कंडीशन है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आप नेगेटिव एप्पल नहीं खरीद सकते, मतलब नेगेटिव एप्पल का तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा। सो जितने आप एप्पल्स खरीद रहे हो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और जितने आप ऑरेंजेस खरीद रहे हो दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर द टू थिंग्स। अब मुझे जो है इस चीज को प्लॉट करना है। अब हम लोग ये क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन ही है, राइट? और ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी हो गई, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। ये 3 लीनियर इनइक्वालिटीज को हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एज यूजुअल हमें क्या करना था अगर इसको प्लॉट करना है, तो अब आप देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें जो इक्वालिटी के साथ लाइन है उसको देखो। पहले तो क्या आ गया? px प्लस QY इक्वल्स टू m। ठीक है, और प्राइस ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल बोथ आर पॉजिटिव, सो p एंड q आर ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ओके। सो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो लाइन है इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट मतलब जब x की वैल्यू 0 है, सो जब x की वैल्यू 0 रखा तो y इंटरसेप्ट क्या आया? y इक्वल्स टू m डिवाइडेड बाई q, राइट? सो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? m डिवाइडेड बाई q। कोई भी वैल्यू हो सकती है, चलो ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या हुआ? x इंटरसेप्ट क्या होता है जब y की वैल्यू 0 है? तो y की वैल्यू 0, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई? m डिवाइडेड बाई p, राइट? सो दिस इज नथिंग बट m डिवाइडेड बाई p। ठीक है, सो मैंने अगर इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ये लीनियर इक्वेशन को मैं प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने इसको जो है प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब मुझे ये लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी जो है इसको प्लॉट करना है, तो हमारा तरीका क्या है? आप 0 0 ओरिजिन वाला पॉइंट पुट करके देखो, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो मैंने 0 0 अगर पुट किया, सो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू m। सो 0 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि m जो है आपकी इनकम है और इनकम जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हम लोग मान रहे हैं। ठीक है, सो ये सेटिस्फाई होता है, तो इसका मतलब क्या है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? ये वाला मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये जो टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, चलो ओके, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। तो ये तो एक चीज प्लॉट हो गई। उसके बाद मुझे क्या देखना है? अब मैं इसको कैसे प्लॉट करूं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू 0। अब x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन कौन सी है?
x की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी हो गई? ये वाली लाइन हो गई मेरी, ये वाली लाइन। x की वैल्यू ये वाली लाइन पे हमेशा 0 है, राइट? एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसी साइड है, राइट? क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव हो जाता है। सो मेरा कौन सा एरिया हो गया? व्हाट इज माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट? अब मेरा इंटरेस्ट वाला एरिया होगा ये वाला, राइट? सो दिस इज सेकेंड इनइक्वालिटी। अब तीसरा एरिया क्या है? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली लाइन कौन सी होगी? y इक्वल्स टू 0। अब ये वाली लाइन जो है यहाँ पे y हमेशा 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला एरिया पूरा, राइट? सो अब मैंने क्या किया, अब इसको भी जो है हमें, अब हमें क्या चाहिए? हमें बजट सेट प्लॉट करना था। बजट सेट क्या होगा? ऐसे पॉइंट जिसमें ये भी सेटिस्फाई हो और x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो तीनों में कॉमन एरिया कौन सा है? तो हम देखते हैं कि कॉमन एरिया इज नथिंग बट ये वाला भी होना चाहिए, ये ऊपर भी होना चाहिए और ये यहाँ पे भी होना चाहिए। सो इट शुड बी दिस एंड दिस एंड दिस। सो मैं देखती हूँ कि ये मेरा जो ट्राइंगल है, दिस इज समथिंग जहां पे ये तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं एंड हेंस दिस इज माय बजट सेट, ठीक है? सो हम अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो है बजट सेट जो है वो सिर्फ ये वाला, दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ओनली। सो दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ओनली, सो दिस ट्राइंगल इज माय बजट सेट। इस ट्राइंगल के अंदर आप कोई भी एक्स और वाई पॉइंट ले आओ, वो आप खरीदने की हालत में हो, ठीक है? इसको बोलते हैं बजट सेट, ठीक है? सो बजट सेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच विल कम जब आप यूटिलिटी के बारे में पढ़ोगे, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, ठीक है? इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ोगे, देयर इट विल बी वेरी रेलिवेंट। सो या आई होप अगर आपको इसमें कोई भी पी क्यू की वैल्यू दें और आपको प्लॉट करने बोला जाए, then you will be able to do that. So yeah, so we saw how to solve the linear equations using algebra and graph, and then we also saw कि हम लोग किस तरीके से points जो है उनको plot करेंगे. So this is nothing but our budget set, ठीक है? So yeah, so this is all for today's lecture, and with that we also come to an end of our second chapter, which is functions of one variable. Now we will move on to our third chapter, which is polynomials and exponentials and powers. So उनके basic concepts जो है अब हम लोग cover करेंगे. So I'll see you in the next lecture, and if you liked the video, please consider subscribing and sharing it with your friends, and also do like the video because that is how I can reach more and more people. So I hope you enjoyed it, and I'll see you in the next lecture. Till then, take care and have a good day. Thank you so much.